दान प्रदान चलता रहता है तो हम यूं ही परफॉर्म करते हैं? नहीं, हम लोग बकायदा हम लोग ने पार्टिसिपेट किया है। यू सीन, तालियां भी बजाई हैं, हंसे भी हैं। और शेखर जी, आपको मैंने फेमस स्टूडियोज से जानती हूँ, जब वहाँ ऑफिस था। When I was not so famous. No, you were famous. आपकी फिल्म थी। Thank you. I don't remember Jungle Queen or something. Jungle Queen. That was her. Mine was Utsav, which I started. Connected to Jungle or something, and I was talking to you. I have been lost a couple of times in my life, but not in a jungle. And I'm Lipika Verma. I've met you. I've spoken to you. I'm sure, of course. Yes. Yeah. But ये सवाल बहुत दिनों से मेरे दिमाग. Your son was in my school, Utpal San. Utpal San. Yes. जी. Okay. Now coming to this, आपने क्या पूछा था कि हम लोग? That's a very good question. This is a very interesting. You know, I'm passionate about the job, and I'm not doing for money. Yes, money comes to me, and coming and sitting and doing this. We enjoy it. And सवाल का जहाँ सवाल पूछने की बात आई है, तो आप लोग अगर हमें और मतलब आपका शो है तो शो से कनेक्टेड सवाल पूछने पड़ते हैं, तो जब वो मैं नहीं कह रहा। मेरा सवाल ये है कि कहीं न कहीं एक ही चीज हर दिन 4 बार करते कहीं बोरियत महसूस होती है? कहीं नहीं, वो उत्साह रहता है, वो पैशन रहता है आपको? Yes, we are passionate about the job. Everybody, I think, even the is everybody very passionate about this? आप लोग हाँ कहेंगे? एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार, क्योंकि आप लोग की तालियों की आवाज नहीं सुनाई देती है। हर वक्त निवेदन करना पड़ता है, गुजारिश, मुस्कुराइए। और अब तो कब वक्त ये मास्क आ गया, पता ही नहीं चलता पीछे एक्सप्रेशंस क्या है। Hats off to the younger generation. I must tell you that I imbibe their energies. You know, they are so energetic. All the young. बस they are very energetic. एक ही गुजारिश है, show it. Deepak, would you consider Archana also to be one of the loyalists to you? Because after this, I believe she is going to join for Kapil Sharma's next show. Well, she has said enough, and it puts added pressure. Every time I've reached out to Archana, it has to be for something which is a great show and a compelling show. And I'm very happy she considers, our company, our friendship, so important that she immediately, signs up for it. And I must say the same thing for Shekhar. I called him many years back, both Pankaj and I, for another show. And many years later, we are now standing all together, making another show of laughter. So it puts a great sense of responsibility on me personally when we are taking out a show or a franchise or an IP out to somebody. It needs to be a memorable experience for this entire team. And I must say, we have just started. It's already very memorable. We're getting a great feeling about what's really coming up. And I must really thank all of you. I must thank the Sony team who have really let us alone with the show, and trusted us completely. The rest of the team behind this, there's a big army behind this. I can't name everybody here, but तो लगा के रखे हुए हैं. There's an army behind that. Yeah. So each one has been very, very integral to bring us to this stage, and I'm sure it's just. I'm getting a feeling we're just starting off. I have to add one thing here, that to make a comedy show, it is very important that the creative team is left to do what they know best. For that, you need a channel that supports that creative team, which has faith in that creative team. And I think Sony has always stood for that. Absolutely. They have always given us great comedy shows, as is evident from Comedy Circus and Kapil Sharma show and this one, which is going to prove that, this is really again history in the making. So Sony really does support the creative team. It has always given us the freedom to do what we could do, our best, And so thank you, Sony, for a lot of that. As they say, the show must go on, so must the laughter. And Sony strongly believes that the laughter must go on. And between Deepak and Pankaj, and between Deepak and me, he just told me very categorically, this show is going nowhere. It's going to be there for the next 5 years. But either way, Archana is going to be with us. Can I reverse the position? Can I ask one question to the press, please? If you allow me. If I can have the latitude to do that. Can I? May I? Yes? Can I ask the question? ये आप लोग हर रोज जाते हैं नए नए शोज में, बैठते हैं, इसी तरह से देखते हैं, झेलते हैं जो भी, और फिर उनसे वही सवाल करते हैं. आप लोगों के लिए कहीं ऐसा होता है कि बहुत हो गया यार, हर शो में जाके बैठना, सवाल पूछना,
वही सवाल, इसमें नया क्या है, यहाँ आप क्यों आए, इसका हिस्सा क्यों बने. It's just become like a very मैकेनिकल थिंग फॉर यू पीपल. और कहीं ना कहीं आप लोग जज्बाती तौर से जोड़ते भी हैं. मतलब एक इंसान जिसको खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसको इतना खाना देंगे और दिन में 10 बार देंगे तो वो तो कहेगा कि अब मुझे नहीं चाहिए, बैठ जाएगा, खाएगा नहीं. तो आप लोग सिर्फ बैठते हैं, खाते हैं, या ऐसे ही कि जैसा मैंने शुरू में कहा, ओफो एक और नया शो. Is it like that? Do you feel bored doing the same thing? Is it become a perfunctory job? हाँ, आप कोई जवाब देंगे? लिपिका जी को ये जवाब देना चाहिए. She is the senior most here for 35 years doing the same thing every day. हाँ, so every day 35 years. 35 years. 35 साल से आप कर रही हैं लिपिका. आप बताइए कि आप लोगों के लिए ये सिर्फ एक ये हो गया है, बुलाया है तो जाना है और बैठना है. A round of applause. 35 years. Wow. आप जवाब दे लीजिए. इसका जवाब मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि जब परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं आप लोग थोड़े मुझे मायूस दिखे. मायूस नहीं, मतलब ये कि आप आए हैं, बैठे हैं, आप लोग इतने पार्टिसिपेटिव नहीं लगे जितना दिखना चाहिए. तो क्या वजह है कि मतलब यू फील दैट द मीडिया हैज अ वेरी सीरियस प्रोफाइल, तो हम लोग हंसना नहीं चाहिए, हंसने से हमारी संजीदगी कम. अबे कैमरा पीछे लेना सिद्धेश. एक बार फिर से इंडिया क्लब चैंपियन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कुछ इस बार अलग देखने मिलेगा? कंटेस्टेंट्स अलग देखने को मिलेंगे, उनकी सोच, उनका अप्रोच, उनकी फलसफा, सब कुछ अलग देखने को मिलेगा. अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग भाषाओं के साथ आए हैं, अलग अलग तहजीब के साथ आए हैं, अलग ह्यूमर के साथ आए हैं. तो ये सब अलग देखने को मिलेगा क्योंकि ओवर द इयर्स, इन सालों में बहुत कुछ बदल चुका है. तो सोच भी बदली है, किस तरह से करते हैं. OTT प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा अश्लीलता रहती है और बाकी शोज़ में भी अब जो चीज़ें हो रही हैं वो पुरानी हो चुकी है. तो नएपन की आवश्यकता है और नयापन तभी आएगा जब नए लोग नई सोच के साथ आएंगे, तो वो अलग है. I feel the flavors are very different. हिंदुस्तान में इतने सारे फ्लेवर्स हैं, खाने के भी, रहन सहन के भी और ह्यूमर के भी. तो कोई हरियाणा से है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश, अलग अलग फ्लेवर्स जो हम इस मंच पर देखने को हमें मिल रहा है, उससे मैं तो बहुत ही सरप्राइज भी हूँ. सरप्राइज इसलिए क्योंकि इतना बढ़िया और इतना अलग अलग सब कर रहे हैं, तो अलग अलग जो है वो बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग. हम सिलेक्शन करना कितना इजी है? Yeah, I was going to add कि being from Chennai, you guys have all seen me grow up in the industry and try to learn the language and इस बार मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ नहीं चाहिए. It is so relatable and it is so understandable. It's all about being Indian. It's all about being from any part of our country. तो अलग अलग वैरायटीज भी है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने और टू एंजॉय इट ऑल्सो आप कहीं से भी एंजॉय कर सकते हैं. और आपने जैसे पूछा सिलेक्शन करना कितना डिफिकल्ट था, तो उतना ही डिफिकल्ट था जितना एक लड़की का सिलेक्शन करना, लड़के को सिलेक्शन करना एज ए वाइफ हस्बैंड. तो उसमें कभी बनता लड़की खूबसूरत है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी है लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ी गरीब है, बाकी सब कुछ अच्छा है लेकिन थोड़ी महंगी है, वो है लेकिन नाक थोड़ी टेढ़ी है. तो सब कुछ सब जगह नहीं मिलता. लेकिन ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं और सब मिला के अगर आप पूरा का पूरा गुलदस्ता देखें तो हर चीज़ वहाँ है. आँखें भी अच्छी है, नाक भी अच्छा है, मुँह भी अच्छे हैं, वो अमीर भी है, वो पढ़ी लिखी भी है, वो दुल्हन अच्छी है या वो दूल्हा अच्छा है. आई थिंक सबसे बड़ी बात जो मैं देखता हूँ वो ये कि इट्स हेल्दी ह्यूमर, इट्स क्लीन ह्यूमर, और उसमें कोई प्रोफैनिटीज नहीं है, ऑब्ससेनिटीज नहीं है, अश्लीलता नहीं है, और किसी भी हद तक जाने की ज़रूरत नहीं है आपको हंसाने के लिए, क्योंकि अच्छी बातों से भी लोगों को अच्छी तरह से हंसाया जा सकता है जो इस शो में है. तो अगर ऐसे समझे कि अगर 75-80 साल के बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, ये हमें क्या हंसाएंगे, लेकिन उनकी सोच इतनी अच्छी और इतनी अलग है कि बहुत ज़्यादा हंसी आई जब उन्होंने परफॉर्म किया. तो हम वो देखेंगे कि लोग जो आए हैं वो एक शालीनता और मर्यादा के दायरे में रह के परफॉर्म करें. मेरे लिए बहुत है. रोशन, आपसे पूछना चाहेंगे, हमने आपको कपिल में देखा है, कपिल में जिस तरह से आप एक्ट करते थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, और अब कपिल के बाद ये शो होस्ट करना और इसकी जो होस्टिंग की पावर है वो आपके पास है, कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? आई थिंक फॉर मी इट्स मिक्स्ड फीलिंग्स, क्योंकि जैसे आपने कहा कपिल में मोस्ट ऑफ द ह्यूमर वाज मेरे ऊपर, एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो दूसरों पर हंसते हैं वो कॉमेडी करते हैं, लेकिन जो खुद पर हंसते हैं वो कमाल करते हैं. सो मैं खुद का ऐसे कॉम्प्लीमेंट करती हूँ. बट
here it's an amalgamation of both things. I started out hosting the IPL, and hosting is where I am the most natural, and you know, it's what comes easily to me. मैं सोते सोते भी ऐसे बोलते हैं ना, Mom, please bring the coffee. We are all waiting in the living room. So I think it's combining something that I've learned and something that comes naturally to me, and I'm very, very excited. And now she's in IHL, Indian Humor League, and she's doing a wonderful job. Thank you. So after lockdown and all, बहुत से लोग जैसे डिप्रेशन and all में थे लॉकडाउन के टाइम. So एक बार फिर से ये वैसा ही दौरा फिर से सुनने में आ रहा है, न्यूज़ एंड ऑल एवरीथिंग, केसेस बढ़ रहे हैं एंड ऑल, लेकिन ये लाफ्टर चैलेंज उन्हें कितना हंसा सकता है? बहुत 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 हंसा सकता है, बहुत हंसाएगा और हंसाना चाहिए, क्योंकि कभी जब ऐसा वक्त आता है कि हम खुश होने लगे हैं, उसी वक्त ये खबर आ जाती है कि कोरोना का ये 3rd वेव है, 4th वेव है, 5th वेव है, फिर से लॉकडाउन हो सकता है, फिर मास्क के पीछे चले जाइए, फिर ज़िंदगियां तबाह होने वाली, फिर बर्बादी आने वाली है, फिर मौतों की खबर हम सुनने वाले हैं। ऐसे में हम कोशिश यही करेंगे कि लोगों को कम से कम खुश रख सकें। अगर भगवान न करे ये होता है, घर में लॉकडाउन होता है, कम से कम एक वजह उनके पास होगी हंसने और मुस्कुराने की। And also to teach people to take things lightly. Yeah, not to take themselves so serious. Don't you agree with me, Archie? हम लोग बहुत खुद को बहुत seriously लेते हैं. मैं तो नहीं लेता. हाँ, this is a show that will teach you to laugh at yourself, and I think Archie is someone who's been teaching us all how to do that for a long time. मैम फिर से ऐसा कुछ देखने मिलेगा जो आपके क्लिप्स देखने मिलते थे, आपकी जो असिस्टेंट थी आज उनका भाग्यश्री. यस वेल वो तो मेरे घर का सिलसिला है, तो इस शो से कुछ उसका संबंध नहीं है, लेकिन देखिए जब कोरोना आया है तब हमने अपने घर में वो खुशी ढूंढने की कोशिश की है। तो भाग्यश्री एंड आई यूज्ड टू मेक दोस वीडियोस तब। अब देखिए वापस कोरोना आ रहा है, सबने मास्क पहन लिए, तो मैं तो उम्मीद करती हूँ कि इस वजह से नहीं मैं भाग्यश्री के साथ वीडियोस बनाऊँ, बट शी इज़ अ लवली पर्सन और उसने कितना एंटरटेन किया है पूरे हिंदुस्तान को, एंड इट्स सो लवली टू सी समबडी इज़ वर्किंग इन अ होम। आप देखिए वहाँ पर भी टैलेंट है यार, ऐसे कितने टैलेंटेड लोग हैं हमारे देश में, और ऐसे ही कितने लोगों को ये शो जो है एक मौका दे रहा है। ये लोग कहाँ से आए हैं, कोई बहुत उनकी नॉट फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिलीज, लेकिन टैलेंट अगर आप देखोगे तो कमाल है। सो आई लव बीइंग सपोर्टिव ऑफ टैलेंट which is so new, so genuine and so raw. I think I should also add to it that in COVID, the social media, kind of went crazy, and people thought that, it's only for the young ones. But there are people like Archie that kept us all so entertained. You have become like a social media queen. I'm not kidding. मैं उनके videos देखते हैं inspiration के लिए, आज क्या करूँ? So I think hats off to you. I must start the videos again then. अगर इतने सारे लोग देखते हैं, उस दिन ना वो RRR की रामचरण and Junior NTR had come and they said, how was Bhagyashree? I said, hey? They said, yes, we watched her videos. I'm like, oh my god, my house help is a superstar. पर इतने बड़े सुपरस्टार। तो मैंने भाग्यश्री को जाकर वापस बोला, मैंने कहा तुझे मालूम है वो हजार करोड़ है, कितना मैडम कितना? मैंने कहा हजार करोड़ करती है उनकी फिल्में, और वो पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? मैंने कहा भाग्यश्री swear God, सच्ची ऐसा बोला। She was so happy. So she's. I think I must make those. Yeah, for sure. Thank you. लास्ट क्वेश्चन गाइस, देन ओके, लास्टली फैंस को क्या कहना चाहोगे, जो ऑडियंस है उन्हें क्या कहना चाहोगे, और एक क्या मैसेज मिलने वाला है सभी ऑडियंस, सभी व्यूअर्स ऑडियंस को? ये हम सब मिलकर ये कहना चाहेंगे कि देखिए ज़िंदगी में हंसना मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ों के अलावा जो हम बहुत सारी चीज़ें दिनचर्याएं करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, पूजा करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उस तरह से हंसना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि जब ऑडियंसेस ये कंप्लेन करने लगती है कि अब कॉमेडी शोज़ में बहुत अश्लीलता आ गई है, अब वो पुराने जैसा नहीं रहा, पुराने शोज़ बहुत कमाल के रहते थे, अब क्यों नहीं है, OTT में इतनी गालियाँ, इस शो में ये खराबी, उस शो में खराबी है, तो दायित्व जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको कोई शो ख़राब लगता है उसका बहिष्कार कीजिए, डोंट प्रमोट इट, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको प्रमोट कीजिए, उसको इनकरेज कीजिए, ताकि हेल्दी क्लीन ह्यूमर या जो कोई भी विधा लेके कोई सामने आ रहा वो बाहर आए। सिर्फ कंप्लेन मत कीजिए, आप कंप्लेन भी करते हैं फिर उसको देखते भी हैं, इस तरह से उन लोगों को बढ़ावा मिलता है। तो कृपया जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ संदेश भेज रही है सोसाइटी में या देश में, उससे दूर रहें। थैंक यू। Done? Yeah. Thank you. Thank you.